हाय व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट शमीम जॉन एंड यू आर वाचिंग चर्चेस ऑफ पाकिस्तान। आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम में जो शानदार चर्च हम आपको दिखाने जा रहे हैं वह है रावलपिंडी के वेस्टेज में वाक़ सेक्रेड हार्ट कैथोलिक चर्च। आइए इस खूबसूरत चर्च का नज़ारा करते हैं। सेक्रेड हार्ट चर्च का मास्टर प्लान ये है कि ये ईस्ट टू वेस्ट की ओरिएंटेशन में तामीर किया गया। अगर आप इसका एरियल व्यू देखें तो ये क्रॉसी फॉर्म में तामीर किया गया। इसकी छत गेबल्ड रूफ कहलाती है जो कि एक ख़ास किस्म के हैवी मेटल से तैयार की गई है। आप इसकी छत के साइड्स में देख सकते हैं कि आपको होज पाइप्स नज़र आते हैं। इनका बनाने का एक ख़ास मकसद था, जब बारिश होती थी तो बारिश के पानी को स्टोर करने के लिए पिछली जानिब 2 तालाब भी बनाए गए जो कि पानी को पीने के लिए इस्तेमाल करते थे। एक और ख़ास बात, इस चर्च को तामीर करने के लिए जिस ईंट का इस्तेमाल किया गया उस वक्त ये ईंट उन्होंने खुद तैयार की। उसका भट्टा इसी करीबी जगह पे बनाया गया और इस ईंट को उसी वक्त अवेलेबल किया गया। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इसकी लेफ़्ट और राइट में जो विंडोज़ मौजूद हैं वो पॉइंटेड आर्चेस में बनाई गई हैं जिसके ऊपर क्रॉस पैटर्न भी बनाया गया है। इसकी तामीर के लिए आप देख सकते हैं कि उसके अलावा मेटल, लकड़ी और कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया जो कि उस वक्त का अवेलेबल मटेरियल था। आपके इनसाइड भी देखते हैं कि इसमें फ्लाइंग बटरसेस हैं। बहुत ही खूबसूरत और कीमती लकड़ी इसमें बनाने के लिए इस्तेमाल की गई। उसी लकड़ी से इसके बेंचेस भी बनाए गए जो कि बहुत हैवी बेंचेस हैं जिनको उठाने के लिए 4 से 5 लोगों का सहारा लेना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि इस चर्च की एक जानिब विकरेज भी मौजूद है और सुनने में आता है कि जब ये चर्च शुरू में तामीर किया गया उस वक्त यहाँ पे रोमन कैथोलिक एंग्लिकन प्रीस्ट मौजूद थे जो जिनका ताल्लुक इंग्लैंड से था। ये एक पूरा कंप्लीट रोमन कैथोलिक चर्च है जिसमें रोमन कैथोलिक सैक्रामेंट्स को पूरे तौर पे अदा किया जाता है और रोमन कैथोलिक तर्ज पे, उसकी लिटर्जी पे यहाँ पे इबादत का एहतमाम किया जाता है। A warm greeting to my brothers and sisters. I am Father Richard Anguyo, a Mill Hill missionary from Uganda, a country in East Africa. I belong to the Mill Hill Missionaries, a congregation that was started in 1866 by Cardinal Herbert Vaughan in England. My congregation came to Pakistan in 1887 to work with the British Army. They were invited by the Vatican to come and serve the British Army. And most of the churches we had were in the garrisons. And Westridge Parish is one of those. In 1890, on the 14th of June, the foundation of this church was laid.
by apostolic prefect called Reverend Father Beva. He was a Mill Hill missionary. In Westridge, most of the people that joined the church from here, they are mainly those who worked as sanitation workers in the railway. Some worked in the army areas, some worked in the marble industry, and some worked in the textile industry. So this was a community that was basically the sanitary workers. As the cantonment areas opened for the civilians to come in, they started coming into the church. And the priests started moving out to the communities. And the first communities that they reached out to were Sultan Gali, which was the residence for the railway staff. Dog Mangtial, these were mainly people who worked as sanitary workers in the city, in the factories, and with the army. Then also had Dog Rata, because they were close to the city. So they were nobodies, they were the cleaners. So as the church opened, many of them started coming to church. Some will come to ask for help. Some will come because now the hospital was put in, the school was put around. There was no amenities for them that attracted them. They started coming. And many didn't go far. They started settling around. And with that, many Christians also came from Gujarat, Gujranwala, Faisalabad, because there was an opportunity in the city for them to work in. So the population started growing because more people came around. They wanted to settle around where they can get social amenities, and at the same time they can get jobs that can sustain them. Now we have around 955 families, and on average, each family consists of around 5 members. So that can give you an estimate of how many Christians we have in the parish. The parish is a busy parish. Every Sunday we have 3 masses in the main parish. The first mass is at 6:15. The second mass, which is more considered as the main mass with the biggest population, is at 9:30 a.m. Then the evening mass is at 4 p.m. during summer, then 5 p.m. 5 p.m. during summer, then 4 p.m. during winter. Then every Saturday we have baptism in the church. Many people come for baptisms. So I'm happy to be here. It feels homely to be in Sacred Heart Parish, Westridge, because I came in Pakistan for, it's now 6 years. From 2016 up to now, I'm still here. I worked in Sargodha for 1.5 years. Then I came here, and this became my home. For the last 4.5 years, I've been here, and I feel at home. I feel loved. I feel accepted. I celebrate the beauty and the variety, the uniqueness of Pakistan among the people that I serve. I feel contented. I feel happy. I feel at home. So nobody should be worried to come to Pakistan, because just like you, when I was out there, what I heard about Pakistan was always the negative. The media always brought the negative. But when I came here, I found myself in a beautiful country where I feel accepted, loved, not only by our Christian brothers, even I relate with the other religious denominations, which welcomes me with a lot of love. So there's beauty in Pakistan, there's love in Pakistan. Challenges are there, just like any other part of the world. So we shouldn't be focused so much on the negative. Let's embrace the beauty, the uniqueness, the giftedness of Pakistan. Come and see for yourself and experience the beauty of Pakistan. Let the media say what it says. Come and experience the beauty of this lovely country, the Holy Land. So I thank the Discover Pakistan team that has come to talk to me about my experience of Pakistan. They want to show to the world what we have, and we're proud to work with them to show that to the world. So thank you so much for coming, and thanks for being part of this promotion for our churches, the beautiful churches in Pakistan, and also the beautiful Christian community and other religions that bring the differences to form a unique setting for the world. If you want to see what religious cooperation, religious varieties, if you want to see the beauty of interreligious dialogue, come to Pakistan.
That's where we are. That's what we are doing. That's the love we experience from each other. Thank you very much. व्यूवर्स, हम सेक्रेड हार्ट चर्च के मेन चेंबर के नेव में मौजूद हैं और इस चर्च की खूबसूरती ये है कि इसमें नेव मौजूद है लेकिन पाइल्स मौजूद नहीं हैं। अभी हम इस चर्च के खूबसूरत आर्म्स भी देख सकते हैं और इस चर्च में बहुत से ऐसी थियोलॉजिकल फैक्टर्स मौजूद हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस चर्च के बेंचेस बहुत हैवी सॉलिड वुड से बनाए गए हैं और उतने ही पुराने बेंचेस हैं जितना पुराना ये चर्च है। इस चर्च की खूबसूरत बात यह है कि इसकी छत फ्लाइंग बटरसेस पे मबनी है। इस चर्च की फ्लाइंग बटरसेस में आप ख़ास पैटर्न देख सकते हैं जो कि डव पैटर्न है। ये रूहुल कुद्स के नुज़ूल को भी ज़ाहिर करता है कि डव ऊपर से नीचे की तरफ फेस किए हुए आ रही है आसमान से। और इसके अलावा मेरी पिछली जानब बहुत ही खूबसूरत वुडन गैलरी बनाई गई है जहाँ पे क्वायर भी बैठती थी। क्योंकि ये चर्च कैंट एरिया में है, आर्मी के लिए बनाया गया था। इसके बेंचेस में आप ख़ास पैटर्न देख सकते हैं कि जब आप इस बेंच पे बैठते हैं तो अगले बेंच के पीछे नील डाउन करने के लिए एक ख़ास लकड़ी लगाई गया है जिसको घुमा के आप उसके ऊपर नील डाउन कर सकते हैं। उसके साथ साथ जब ब्रिटिश आर्मी यहाँ पे इबादत के लिए आते थे तो अपनी गन्स और अपनी कैप्स को उसके साथ हैंग कर देते थे। आप और भी बहुत सी खूबसूरत चीज़ें आप लेफ़्ट और राइट वॉल्स पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लैंप स्टैंड्स रखे गए हैं। क्योंकि उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी का उम्दा निज़ाम मौजूद नहीं था, गो के खिड़कियों से ही सूरज में रोशनी आती थी, लेकिन इस रोशनी को बढ़ाने के लिए उन स्टैंड्स के ऊपर लैंप्स लगाए जाते थे। लकड़ी भी जलाई जाती होगी उस वक्त जो भी रोशनी का निज़ाम मौजूद था। सो इसकी रोशनी को, एम्बियंस को खूबसूरत बनाने के लिए, इबादत के एहतमाम को खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ पे रोशनी का इंतज़ाम किया जाता था। और आप देख सकते हैं कि इसके क्रॉसी फॉर्म में लेफ़्ट और राइट आर्म्स मौजूद हैं जिसके ऊपर तीन आर्चेस हैं जो कि ट्रिनिटी आर्चेस हैं। उनका मकसद ये भी है कि लेफ़्ट और राइट जो 3 आर्चेस से जो खूबसूरत विंडोज़ हैं, सूरज की मुनासिब रोशनी चर्च में दाखिल हो जिससे उसका माहौल और ख़ूबसूरत बन जाए और चर्च में बराबर रोशनी बहाल रहे। व्यूवर्स, अभी हम मौजूद हैं इस खूबसूरत चर्च की ऑल्टर के सामने। आप मेरी पिछली जानब देख सकते हैं कि एक बहुत ही खूबसूरत वुडन ऑल्टर मेरे पीछे पड़ी हुई है जो कि पाक मेज़ कहलाती है। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत ब्रास से बनाया गया क्रूसिफिक्शन का मंजर भी है और इसके साथ साथ इसके ऊपर बड़ी खूबसूरत आर्चेस भी बनाई गई हैं। एक ऑल्टर की खुसूसियत ये होती है कि उसमें किसी मुक़द्दस का या मुक़द्दसीन का तबारक हो ताकि वो मखसूसियत के साथ उस ऑल्टर को हम हॉली कम्युनियन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और जब प्रीस्ट इबादत का एहतमाम करता है तो उस ऑल्टर को सामने रखते हुए खुदा की हुजूरी को जानते हुए इबादत का एहतमाम करते हैं। अभी हम इस खूबसूरत चर्च की हाई ऑल्टर के पास मौजूद हैं।
इसकी हाई ऑल्टर बहुत खूबसूरत थियोलॉजिकल नवादरात से मुज़य्यन की गई है और ये ऑल्टर ख़ास तौर पर मार्बल से बनाई गई। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत 3 टैरेट्स बनाए गए हैं। सेंट्रल टैरेट्स में आप देख सकते हैं कि 4 आर्चेस हैं और 4 कॉलम्स भी बनाए गए हैं जो कि अनाजिल अरबा और उसका 4 यानी कि 4 गॉस्पल को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बिल्कुल नीचे एक खूबसूरत बॉक्स है जो ब्रास से बनाया गया है। इसके अंदर हॉली कम्युनियन के लवाजमात को रखा जाता है जो कि चर्च में मास के दौरान इबादत के साथ शेयर किए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि इसके लेफ़्ट और राइट टैरेट्स में आप इनके बॉटम पे देख सकते हैं खूबसूरत फ्लावर्स कंधा किए गए हैं। ये फ्लावर यहाँ की लोकल ब्रिटिश इंडिया की रवायत थी जो कि पद्मावत भी कहते हैं। आप इससे पहले होली ट्रिनिटी चर्च मरी में देख सकते हैं कि ये फ्लावर पैटर्न हमें वहाँ पे देखने को मिलता है। इसके बनाने का मकसद ये था कि ब्रिटिश इंडिया में जो लोकल लोग हैं, जो लोकल रिलीजन के लोग हैं, वो इस चर्च में आकर इबादत कर सकें और लोगों को इंडिजिनस माहौल फ्राहम किया जाए ताकि वो इस चर्च की तरफ राग़िब हों और मसीहियत की तालीम को जान सकें। उसके अलावा इस खूबसूरत ऑल्टर पे आप बड़ी खूबसूरत बेल की पत्तियां देख सकते हैं जो कि अंगूर की बेल की पत्तियां हैं। जिस क्राइस्ट ने फरमाया कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और तुम सब उसकी डालियां, ये सब मिलकर एक क्लिसिया का हिस्सा बनाते हैं। लेफ़्ट और राइट में आप रेलिंग में देख सकते हैं कि ग्रेप्स और उसके साथ साथ 3 पत्तियां बनाई गई हैं जो कि ट्रिनिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। इसके सेंटर में, ऑल्टर के सेंटर में आप देख सकते हैं कि स्टार ऑफ डेविड का भी एक बहुत खूबसूरत नमूना बनाया गया है और उसके साथ साथ लेफ़्ट और राइट में वही फ्लावर पैटर्न्स हैं जिस तरह हम देखते हैं बाकी चर्चेज में रोज़ विंडोज़ बनाई जाती थी। ये रोज़ विंडोज़ के पैटर्न हैं जिसके सेंटर में ट्राई लीफ आप देख सकते हैं जो कि ट्रिनिटी को जाहिर करते हैं। व्यूअर्स, ये खूबसूरत ऑल्टर एक बहुत बड़ी आर्च में बनाई गई है। इस आर्च के इंटरनल सीलिंग को बड़ी खूबसूरत लकड़ी के साथ इसको बनाया गया है। इसकी वॉल्स के साथ खूबसूरत 1 और 2 यानी कि 2 आर्चेस लेफ़्ट और राइट जानिब मौजूद हैं। इन आर्चेस से आप देख सकते हैं कि रोशनी निकलती है और इस ऑल्टर को खूबसूरत बनाती है। इस चर्च की ख़ास बात यह है कि ये चर्च भी ईस्ट टू वेस्ट पैटर्न में बनाया गया है ताकि जब सूरज निकलता है तो उसकी रोशनी इन खिड़कियों से इस ऑल्टर पे आए और जब सूरज डूबता है तो बाकी जो इसकी एंट्रेंस के ऊपर 3 आर्चेस बनाई गए हैं उससे भी इस चर्च के ऊपर रोशनी इसके अंदर कॉन्ग्रीगेंट्स पे आए। आप देख सकते हैं कि इस आर्च के सेंटर में क्रूसिफिक्शन का एक मंजर एक स्टैचू की सूरत में वहाँ पे लगाया गया है जो कि बहुत ही कीमती और नायाब है और वो हमें किसी और चर्च पे देखने को मिलते हैं लेकिन इतने कीमती और ख़ूबसूरत अंदाज में नहीं बनाए गए। उसके अलावा आपको बताता चलूँ कि ऑल्टर और हाई ऑल्टर का फ़र्क ये था कि अहद अतीक में हैकल सुलेमानी का पैटर्न हम देखते हैं कि जब सरदार काहिन ऑल्टर से हाई ऑल्टर की तरफ आते हैं तो सिर्फ वाहिद सरदार काहिन यानी कि हाई प्रीस्ट ही आ सकते थे। बाकी प्रीस्ट या काहिन थे उनकी रसाई पहली ऑल्टर तक ही होती थी और इसमें हमें वो पैटर्न वाज़े तौर पर दिखाई देता है। व्यूअर्स, सेक्रेड हार्ट चर्च के साथ एक बहुत ही खूबसूरत और मुनफरिद इदारा मुंसलिक है जिसका नाम सेंट जोसेफ्स हॉस्पिस है। सेंट जोसेफ्स हॉस्पिस एक ऐसा इदारा है जो लोगों की बहाली के लिए काम करता है जो उम्र के आखिरी हिस्से में है या कई क्रॉनिक डिजीज़ का शिकार हैं। ये इदारा उनकी बहाली के लिए काम करता है, उनको नफ्सियाती तौर पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद फ्राहम करता है, इसके अलावा उनकी देखभाल भी करता है। आइए आपको इस खूबसूरत इदारे के बारे में कुछ हक़ाइक़ और कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं।
व्यूअर्स, सेंट जोसेफ्स हॉस्पिस एक ऐसा इदारा है जिसको मुक़द्दस जोसेफ के नाम से मंसूब किया गया है। हॉस्पिस का मतलब है कि ज़िंदगी के आखिरी अयाम को बेहतर बनाया जाए। मेरे पीछे आप इन लोगों को देख सकते हैं। ये गरीब गुरबा ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं जिनके पास ना तो इब्तदाई तिब्बी इमदाद की सहूलत मौजूद थी, ना ही इनके ख़ानदान वाले इनका इलाज करवा सकते थे। सेंट जोसेफ हॉस्पिस इदारे ने इनको इसमें पनाह दी, इनका इलाज कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि इनको कुदरती माहौल फ्राहम किया गया है ताकि ये जिस्मानी सेहत के साथ साथ नफ्सियाती सेहत में भी बहाल हों। इनमें से बाज़ ऐसे लोग हैं जिनका कोई रिश्तेदार, कोई वाली वारिस नहीं है और इन लोगों को यहाँ रख कर उनकी खुराक का ख्याल रखा जाता है, इब्तदाई सेहत का ख्याल रखा जाता है और उसके साथ साथ इनको नफ्सियाती तौर पर ऐसा माहौल फ्राहम किया गया है कि ये ज़िंदगी के अयाम को अच्छे तरीके से गुजार सकें। मेरा नाम सिस्टर साजिदा नियामत है। मेरा तल्लक सिस्टर्स ऑफ चैरिटी ऑफ सेंट जेनेट्यूड से है और 2020 से मैं बतौर एडमिनिस्ट्रेटर इस सेंट जोसेफ हॉस्पिस में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हूँ। और मेरी तालीम जो है वो इटली से है और मैंने BS इंजीनियरिंग किया हुआ है। सेंट जोसेफ हॉस्पिस जो है ये बिल्कुल डोनेशन पे है और फ्री ऑफ कॉस्ट हर हाजतमंद को हम यहाँ पे एडमिट करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इसका इतना जो है वो मिनी को लोग नहीं जानते, लेकिन जो भी ज़रूरतमंद इधर आता है वो उसको हम फैसिलिटेट करते हैं मेडिकल लेवल पे, इवन बेसिक नीड्स लेवल पे। और पाकिस्तान में सिर्फ़ और सिर्फ एक ही हॉस्पिस है। एक्चुअली हॉस्पिस का जो मतलब है जो नियर टू डेथ, जो मौत के बिल्कुल नज़दीक लोग होते हैं उनको हम फैसिलिटेट करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इसका ज़्यादा कंसेप्ट इतना मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से हम हर ज़रूरतमंद को, ख़ास तौर पर जो पैरालिटिव पेशेंट्स हैं जिनको जो है क्रोनिकल डिजीज़ होती हैं, उनको रखते हैं। हमारे पास पेशेंट इस किस्म के भी हैं जो 25 ईयर से इस जगह पे मौजूद है। हमारे पास जो है वो 50 बेड्स की फैसिलिटी मौजूद है, इसमें मेल और फीमेल है। इसके अलावा हमारे पास OPD की फैसिलिटी मौजूद है। OPD में हमारे पास लेबोरेटरी है, एक्सरे डिपार्टमेंट है, फिजियो डिपार्टमेंट है और फार्मेसी है। फिजियोथेरेपी का हमारा स्पेशल डिपार्टमेंट है, जहाँ पे बहुत से लोग जो हैं वो सेहत याब होके जाते हैं। वो चारपाई पे आते हैं लेकिन उठकर अपने पाँव पे खड़े होके जाते हैं। यहाँ पे रंगो नस्ल का कोई तजाद नहीं किया जाता। यहाँ पे हर मज़हब के लोग जो हैं वो मौजूद हैं। स्टाफ भी जो है वो मुस्लिम, क्रिश्चियन, हर किस्म का है। इसी तरह ही पेशेंट जो हैं वो भी। और इसी के साथ ही जो है वो जो अदारा, जो हमारे डोनर्स हैं वो भी ज़्यादा मुस्लिम हैं और वो जो है वो डोनेशन इसलिए देते हैं ताकि ये इस तरह के अच्छी कॉज जो है वो उसको रन किया जा सके। यहाँ पे सेंट जोसेफ हॉस्पिस में नर्सिंग केयर के अलावा हमने इस यहाँ के एटमॉस्फेयर को बड़ा पीसफुल बनाने के लिए नेचर को बहुत मद्देनज़र रखते हैं। इसके लिए हमने इनको एक्वेरियम की जो है सहूलत दी है ताकि इनकी मेंटल थेरेपी जो है वो होती रहे। और इसी के साथ ही हमने रिसेंटली एक जो है इनके लिए सेंटर ओपन की है, जो कि कंप्यूटर की फैसिलिटी मौजूद है और सिलाई की फैसिलिटी मौजूद है, ताकि जो वक्त उनके पास मौजूद होता है वो उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सके। जी तो व्यूअर्स, ये था हमारा चर्चेस ऑफ पाकिस्तान की सीरीज़ का खूबसूरत प्रोग्राम सेक्रेड हार्ट रोमन कैथोलिक चर्च पर। उम्मीद करते हैं कि आपने इस चर्च की बिल्डिंग और इसके साथ मुत्तसिल मसीही फलाही इदारे की खिदमात के ताल्लुक से बहुत मालूमात हासिल की होगी
अपने होस्ट शमीम जॉन को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी चर्चेस ऑफ पाकिस्तान के एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान, सबसे प्यारा पाकिस्तान।